So students, we'll be doing the average velocity and average speed. So when we are moving in the same direction, so average velocity, average speed is the same thing. Average speed is same. The magnitude of average velocity will be same as average speed when we are moving in the same direction. Now what is average speed? So average speed is equals to total distance traveled divided by total time taken to travel that distance. So total distance traveled divided by total time taken. Now suppose a particle is moving from point A to point C and there is a point in B in between. So I have moved with velocity v1 from A to B, okay, with speed. Let us say speed, not velocity. So symbol is the same because speed is nothing but the magnitude of velocity, okay. So v1 is the speed from A to B and v2 is the speed from B to C, students. Now let this distance be S1 and this distance is S2, okay. So the distance AB equals to S1 and BC equal to S2. Now the time taken to reach A to B is T1 and the time taken to reach B to C is T2, okay. Now student, average speed is equal to total distance travel upon total time. Now before that, let us see what is the relations between V, S1 and S2. What is the relation between them, students? V is equal Velocity, to S by T. yes, V1 is equal to S1 by T1, or you can write it as S1 is equals to V1 T1, okay. Similarly, you can write V2 is equals to S2 upon T2, or you can say S2 is equals to V2 T2. Agreed? And you can write T1 also as S1 upon V1. And here T2 you can write as S2 upon V2. Do you all agree, students? Yes, sir. Okay. Now let us write average speed. So average speed is equals to total distance traveled, which is S1 plus S2 divided by total time taken, that is T1 plus T2. Now put the value of S1 and S2. What do you get? V1 T1 plus V2 T2 divided by T1 plus T2. Agreed, students? Yes, sir. So one result you get by putting the values of S1 and S2, and another result you will get, Putting a value of T1 and T2. very good, when you will put the values of T1 and T2. So what is T1 and T2? S1 upon V1 plus S2 upon S2 by V2. yes.
And students, here this is S1 plus S2. Now what is the LCM here? V1 into V2. So I told you whatever be the LCM, this denominator will become numerator. Okay, so directly have a habit of writing this. So V1 V2 will come here, and what will we get here? V2 S1 S1. V2 plus S2 V1. Yes, so you will get S1 S1 V2 plus S2 S2 V1. V1. Yes, so these are the formula, students, that you have. So here we put the values of T1 T2, here we put the values of S1 and T1. So we will be getting two separate results. Now what happens if T1 is equals to T2 is equals to T? Means the time are same to travel from A to B and then B to C. Same time. Then what will be your average velocity, students? V1 plus V2 by 2. Yes. So your average velocity, see, this is the condition. Then the average velocity will be V1, because put T here. So T, T, T and T. So divide numerator and denominator with T. So all these T will be cancelled out. And here you will get 1 plus 1. So this T is cancelled out. So 1 will be left. T multiply 1 is okay. So what do you get? 1 plus 1, 2 in V1 the... plus V2 by 2. Yes. So V1 plus V2 divided by 2. So students, that's your average velocity. Got it? What is the condition? If time interval is same. Yes. Now let us, because here we there is one condition over here also. S1 equals to S2 is equals to S. Distance is same. Then students, what will be the formula of average velocity if this condition is there? V1 V2 upon So put S. V1 V2 Okay. upon में V2 plus V1. So put S at all the places. So here S, and then divide numerator and denominator with S. So you can do it with this or this, you will get the same answer. So S will be cancelled out, and what will be left at the top? 1 plus 1, 2. So here also 1 plus 1, 2. Same thing. And at the bottom 1 by V1 plus 1 by V2. So you will get 2V1 V2 by divided V1 by plus V1 plus V2. So student, these are very important results, two important results. When the distance is same, you will apply this formula, and when the time is same, you will apply simply average formula. This is your average formula, normal, like two numbers average you are finding, so A plus B by 2. So you will be using that formula when the time is same. But when and if time and distance, none of them is same, then you have this formula, students, and this formula. So you have these formulas if they are not same. Okay. Yes, sir. So 2V1 V2 upon V1 plus V2. So students, can you see one thing here? This is your arithmetic mean, isn't it? What is this V average? This is your arithmetic mean of V1 and V2. Agreed? Yes, sir. And this average velocity you can see from here also, and from here also. You know the harmonic mean of two numbers AB is A plus B, A into B upon A plus B. That is your harmonic mean. Yes, sir. Or you Yes. can write as 2 upon A
this that's the same thing. So from here you will get 1 plus 1 2 divided by 1 by v1 plus 1 by v2. So clearly you can see that this is this. And now from here then you get this. So clearly you can see that this is the, here V average is your, so when the time is same then arithmetic mean you are supposed to find, and when the distance is same then you have to find the harmonic mean of V1 and V2. So you are finding mean of V1 and V2, but which mean you are supposed to find at which condition? See students, got the meaning? Both are mean, but you will be finding arithmetic mean when the time interval is same, and you will be finding harmonic mean when the distance is same. Shall we move forward now? Have you written these two formulas? Yes, sir. Okay, so write these formulas again. So whenever you will be, you got a question of average velocity, students, always write that when the time is same then average velocity is the arithmetic mean, and when the distance is same then average velocity is equals to harmonic mean. So apply these, you will find them quite easy now to solve the questions. Noted it down, students? Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. Now that's the first question. A body travels from A to B at a speed of 40 meter per second. So this is your A, this is your B. So A to B 40 meter per second, and then B to A 60 meter per second. So what is same, students, here? Distance. Distance. So what formula you will be using? Harmonic mean. Yes. So find the harmonic mean of these two numbers. So what do you get, students? This is 100. So these two zeros will be cancelled out with 100 and you get 48 meter. 48 meter per second. Yes. Now another question, students. You have a track 60 kilometers and a train travels first 30 kilometer with uniform speed of 30 kilometer per hour, and the next 30 kilometers, at what speed the train should travel so that you will get the V average is equals to 40 kilometer per hour for the entire trip. So students, what is same here, time or distance? The distance. Distance is same. So which Same. formula you will be using? Harmonic mean of Harmonic V1 mean. and V2. So you can assume this as x. Yes, x kilometer per hour. This is what you need to find. Speed for this interval. So tell me, find out, tell me the answer. Two into V1 into V2 upon V1 plus V2 is equals to 40.
So 1 0 will cancel out here and 2 to the 4. So 3 is equals to 60 plus 2x. And 2x is equals to, what's the problem here 60. students? X is equal to 30. हाँ नहीं क्या, हाँ x is equals to 30. यहाँ हमने क्या किया है, 2v1 v2 upon v1 plus v2 is equals to this. So here I have 3x. Yes sir, 60 मीटर पर सेकंड आ रहा है. ओके, किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना बेटा. 3x is equals to Sorry sir, वो 60 plus 2x and x equals to 60 किलोमीटर पर आवर. Yes sir. 60 किलोमीटर पर आवर आ गया स्टूडेंट्स. Yes sir. Yes, sir. Let us do the next question. A body covers 1/3 of its journey with the speed. तो ये आपकी जर्नी है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो 1/3 ऑफ द जर्नी विद द स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 ऑफ द जर्नी विद द स्पीड v. तो टोटल आपकी जो जर्नी थी वो 3x थी स्टूडेंट्स. ओके, एंड द लास्ट वन विद स्पीड w स्टूडेंट्स. ये आपका क्वेश्चन है. तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी. यस, तो स्टूडेंट्स यहां डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है? Distance same. Distance. तो कौन सा Distance. फॉर्मूला लगाएंगे? हार्मोनिक मीन. Harmonic mean. Harmonic. Harmonic. हाँ, अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं. अगर आपके पास 2 नंबर थे तो हार्मोनिक मीन वाज 2ab अपॉन a प्लस b, राइट. और अगर 3 नंबर है a b c तो बताओ हार्मोनिक मीन क्या होता है? 3abc plus 3abc upon a plus b plus c. ab प्लस bc प्लस c है. याद आ गया? Yes, sir. तो चलिए इसमें 3 है तो आंसर क्या होगा आपका? 3uvw डिवाइडेड बाय ux plus xw plus wu. uv प्लस vw प्लस w. ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और आप इनको फटाफट बिल्कुल स्पीड से क्रैक कर रहे हैं. बिल्कुल सर ऐसे फिर मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं फिजिक्स में इस क्वेश्चन में? क्या बेटा? सर ये तो फिर मैथ्स से निकल रहा है ना इसका आंसर तो सर, लेकिन फिजिक्स में आएगा ये क्वेश्चन तो मतलब बेटा, माना जाएगा ये? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. ठीक है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही मैथ्स जो है वो अब आपकी लैंग्वेज है फिजिक्स की. आप डिफरेंस कैलकुलस जो आप कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वेक्टर्स आप यूज करेंगे, सारा का सारा मैथ्स ही तो कर रहे हैं आप फिजिक्स में. बिल्कुल आपको ऐसे कैसे निकालना है. बिल्कुल जितना आप ज़्यादा कोरिलेट करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी. आप इन्हें अलग अलग ना समझें. आप ये मत समझें कि फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है. नहीं, ये तीनों एक ही ट्री जो है उसकी 3 ब्रांच हैं और एक इकोनॉमिक्स हो गई जैसे. इज दिस क्लियर? ओके सर. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. बिल्कुल ऐसे कैसे करेंगे बेटा. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स?
चलिए, अच्छा इससे पहले लेट मी गिव यू इजी क्वेश्चन. A car travels, if you want to write down, you can write it down. A car travels along a straight line for the first half time with the speed of 60 km per hour and second half time with first half time with 50 km per hour and second half time with 60 km per hour. So students, first half time 50 km per hour and next half time 60 km per hour. Tell me the average speed. 55. Very good. Yes, sir. Time is same. So arithmetic mean that is 55. Yes, absolutely. So time is same. This is also t, or you can say t by 2, and this is also t by 2. So if the time is same, then which formula you are going to use? Arithmetic mean. A plus B by 2. Yes, a plus b by 2. So average velocity. So we are finding the average of v1 and v2. So v1 and v2 divided by 2. So students, what will be your answer? V average is equals to 50 plus 60 divided by 2. That is equals to 55 km per hour. Note it down, students. सर आप फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दो क्लासरूम पे. Okay. Formula sheet. Which formulas, beta? सर ये फिजिक्स के जो आप लिखवा रहे हो अर्थमेटिक मीन और सी दो फार्मूलेज लिखवाए हैं, आप लिख लो अभी. और जो है मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हेन द टाइम इज सेम. लिख लो फार्मूले. व्हेन द टाइम इज सेम देन द एवरेज वेलोसिटी इज v1 plus v2 by 2 अर्थमेटिक मीन. व्हेन द डिस्टेंस इज सेम देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन. बस यही तो लिखवाया है. बस बताओ और क्या लिखवाया मैंने. ये दो फार्मूले लिखवाए हैं बस. फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला. जब टाइम सेम है तो एवरेज वेलोसिटी अर्थमेटिक मीन होती है, और जब डिस्टेंस सेम है तो एवरेज वेलोसिटी हार्मोनिक मीन होती है. बस ये हार्मोनिक मीन है, ये अर्थमेटिक मीन है. बताओ और क्या लिखवाया मैंने. लिख लिया? ठीक है. चलो. यस सर. चलो बेटे, अब अगला क्वेश्चन करें. Yes, sir. ओके, चलो. ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. बेटे आप ये ना फिगर जरूर बनाएं इन क्वेश्चंस के लिए, बहुत आसान होगा आपके लिए. बिना फिगर के न्यूमेरिकल्स नहीं करने आपको. ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस. स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्वेश्चन. 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस. मान लीजिए डिस्टेंस भी x है तो ये भी x है, तो हाफ हो गया. with velocity v0, and the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half time. यानी कि अगर आपका टोटल टाइम जो था वो पूरी जर्नी के लिए, यहाँ के लिए t था, यहाँ के लिए t, तो इस ये जो आपका t by 2 ये t था, और ये कितना हो गया t by 2. ये डिस्टेंस पूरा सेम है x और x. क्वेश्चन समझ रहे हैं आप. ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस 2x था, तो आधा डिस्टेंस v0 से ट्रेवल किया. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम. तो बाकी के लिए जो टाइम था, यहां हमें नहीं पता ये टाइम t है या नहीं है इधर का, लेकिन इधर का टाइम t है. ओके. गॉट द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर. और इस t में आधे टाइम हमारी वेलोसिटी थी v1,
और at that time हमारी वेलोसिटी क्या थी v2. You have to find the average velocity or mean velocity for the whole journey. Okay? चलो बताओ जल्दी से. सर हार्मोनिक मीन निकल जाएगा डायरेक्ट, हार्मोनिक क्योंकि डिस्टेंस सेम टाइम टोटल. वेरी गुड. देखो ध्यान से बिल्कुल पहले आराम से निकाल लो, पहले इस पोर्शन की वेलोसिटी निकाल लो. ठीक है, इसमें क्या टाइम सेम है, टाइम सेम है तो फार्मूला क्या होगा आपका, बिल्कुल सिंपल, v एवरेज, इसकी एवरेज मान लेते हैं v डैश. क्या मान लेते हैं इसकी एवरेज v डैश. ओके, तो क्या आ गया v डैश, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2. कितना आसान, एक सेकेंड में. डन स्टूडेंट्स. ये a b c था, तो फ्रॉम b टू c आपने निकाल ली एवरेज वेलोसिटी. ओके, क्या ये आपके एवरेज, टाइम इज सेम, तो इसलिए आपने अर्थमेटिक मीन लगा दिया. चलो अब टोटल एवरेज कितनी आएगी स्टूडेंट्स, सर हार्मोनिक 2v0 v एवरेज जो अभी आपने निकाल ली है v डैश डिवाइडेड बाय v0 प्लस v डैश. एग्रीड. Yes. अब ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे v डैश की दोनों जगह. तो क्या आएगा बताओ, 2v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 फर्दर डिवाइड बाय v0 प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2. एग्रीड. करो, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आया. 2v0 v1 plus v2. 2 से 2 कैंसिल कर दो और क्या आ जाएगा, और नीचे से एलसीएम क्या आएगा 2, और 2 को सीधा ऊपर ले जाओ, तो 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम लिया था तो यहां 2v0 प्लस v1 प्लस v2. यस, खत्म. ओके सर, डन. और स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, हमारे फिजिक्स में 2 बुक्स बहुत अच्छी हैं. एक सीबीएसई के लिए है एसएल अरोड़ा, और एक है जो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए 2 बुक हैं, मतलब 5-5 वॉल्यूम्स हैं इनके. एक तो है पब्लिकेशन अरिहंत, जिसकी बुक का क्या नाम है, सर लक्ष्मीर सिंह एंड मंजीत कौर जो बुक आती है. बेटे वो तो 10th तक खत्म हो गई. अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सर पिछले साल इशू करवाई थी आपने. बेटा कहाँ से इशू कराएंगे बताओ. सर एसएलआर और तो है. आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, मैं ये बता रहा हूं आपको. आपको कोई बुक परचेज नहीं करनी, सिर्फ एक ही बुक परचेज करनी है और वो है एनसीईआरटी बस. बाकी आपको जो नोट्स मैं दूंगा वो करने हैं, और जो नोट्स आपके टीचर दे रहे हैं वो करने हैं बस. क्लियर है. यस सर, क्लियर. हाँ, मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि अरिहंत की बुक आती है डीसी पांडे, और दूसरी संगेज पब्लिकेशन की बुक आती है मिस्टर शर्मा की. और ये दोनों तो आप समझ गए, एक सीबीएसई के लिए और ये 2 बुक्स, तो इन दोनों में से कोई बच्चा एक ले लेता है. तो संगेज की जो है वो आजकल ज़्यादा चल रही है, इसकी 5 बुक्स का सेट है. मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जो अभी हमने किया ये दोनों बुक्स में है, एसएल में भी है और संगेज वाली में भी है, जेई एडवांस में. और दोनों में ही आप सॉल्यूशन देखोगे तो उनका तरीका दोनों ने एक दूसरे का कॉपी किया हुआ है,
और दोनों ने ही ऐसा बना दिया इस क्वेश्चन को कि बहुत ही मुश्किल की भाई इससे टफ क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। जो क्वेश्चन हमने 2 स्टेप में निकाल दिया उन्होंने 10 स्टेप में निकाला है। तो आप अंदाजा लगा लो कि ये बुक्स में, फिजिक्स की बुक में और इनमें ये क्या करते हैं ऑथर, इनके नाम इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये लॉजिक वाइज नहीं चलते, कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं। इस तरीके से किताबें बनी हुई हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं वो नोट्स बेस्ट हैं, उन्हीं से काम करना है आपको। कोई बुक परचेज करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। सबको समझ में आ गई बात? यस सर। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, जिस ढंग से मैं आपको करा रहा हूं, और उन किताबों से आप पढ़ोगे, एसएल से पढ़ोगे या सैंगेज से पढ़ोगे, तो उनमें बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एसएल की बुक है तो देखना, उसमें ये मैंने वहीं से, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं, आप देखो, मेरी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ट्यूशन लेंगे, कोचिंग लेंगे, इधर उधर भागेंगे, समझ नहीं आता क्यों। तो स्टूडेंट्स आप ये सोच लीजिए कि आपको बेस्ट चीज मिली हुई है, बेस्ट स्कूल आपको मिला हुआ है, और ये फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कोई बुक्स का खर्चा नहीं, कोई फीस नहीं। बताओ लाइफ में इससे अच्छा और क्या चाहिए? तो स्टूडेंट्स आप किसी चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स हम आपके बनवा रहे हैं उनको 2 बार 3 बार करो, बस आपके पास इतना ही टाइम है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, एनसीईआरटी से नोट्स बनाओ, बस आपकी एक ही टेक्स्ट बुक है, वो है एनसीईआरटी, और उसके अलावा हमारे नोट्स बस। और हम आपको उसके अलावा एक बुक लगवाएंगे, एक बुक आपको लेनी है, और वो होगी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो बच्चा जेई की तैयारी करना चाहता है जेई की, जो नीट की तैयारी करना चाहता है नीट की, बस एक ही बुक आपको लेनी है, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। और वो अभी लेने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है फिलहाल। तो स्टूडेंट्स मैं फिर से बता दूं, आपको 2 ही बुक लेनी है बस। एक लेनी है अपनी एनसीईआरटी, और दूसरी जो बुक आपको लेनी है वो है प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ये बुक जेई के लिए अलग आती है और नीट के लिए अलग आती है, और ये सब्जेक्ट वाइज होती है। फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, और बायो की अलग, और मैथ्स की अलग। तो प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, ये बुक आती है। तो इसमें अरिहंत की आती है ये पब्लिकेशन की, और उसके अलावा बाकी कई पब्लिकेशन उनकी भी आती है। तो ये हम सिर्फ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर, तो आपका 3 मटेरियल अगर आपको जेई एडवांस क्लियर करना है, तो आप जो मटेरियल आपके पास है उसे अच्छे से करो, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आनी चाहिए, जो आपके क्लास नोट्स आपको मिलेंगे वो आने चाहिए, एंड देन प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये 40 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको हम करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूंगा, ये बुक आपको लेनी है, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एक बुक जो है 200-300 रुपये की आती है एक सब्जेक्ट की बस। उसके अलावा आप अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट ना करें और समय भी बर्बाद ना करें इधर उधर बुक पढ़ के, कुछ समझ नहीं आना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है आपके लिए। कोई आपको ट्यूशन कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें। जो आपके क्लास नोट्स हैं इनको 2 बार 3 बार सॉल्व करें। चलिए स्टूडेंट समझ गए? एक और क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स? यस सर। क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी ये जो बुक्स हैं ये मेरे नोट्स में ही कवर हो जाएंगी। ये सैंगेज की जो बुक है जेई एडवांस की, एनसीईआरटी मेरे नोट्स में कवर हो जाएगी, एसएलवी मेरे नोट्स में ही कवर हो जाएगी। तो आपकी जो मैम नोट्स बनाएंगे उसमें एनसीईआरटी और बेसिक्स कवर हो जाएंगे, और मेरी जो बुक है उसमें सैंगेज और ये जो बुक्स हैं इनका पोर्शन कवर हो जाएगा, एसएल का और जेई एडवांस की जो बुक है।
तो इसलिए नोट्स को अच्छा अच्छा बनाएं और बताया है इसको 2 बार लिखें अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। एक बार तो क्लास में लिख लिया, उसके बाद जब दोबारा लिखें रेड पेन, ब्लैक पेन, पेंसिल, ब्लू पेन, बिल्कुल अच्छे से दोबारा से फिर से नोट्स बनाएं अपने अच्छे से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। ये फिजिक्स क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी with a constant speed v and half the remaining part of the journey, half the remaining part of the journey, ये हाफ जर्नी आपने v से ट्रेवल की एंड रिमेनिंग पार्ट हाफ ऑफ द जर्नी 2v स्पीड से, और जो अगली जर्नी है डेट इज रेस्ट ऑफ द जर्नी, तो कितनी बच गई x/2 और इसको 4v स्पीड से। एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी बतानी है स्टूडेंट्स आपको। निकालिए जल्दी से। यहां पर क्या लगाएंगे, पहले यहां डिस्टेंस सेम है और फिर उसके बाद यहां दोनों का डिस्टेंस सेम फिर हो जाएगा x। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो कौन सा मीन निकालते हैं, हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन। तो 2 बार निकालो। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश। तो v डैश क्या है बेटा, v डैश इक्वल्स टू 2 इंटू 2v इंटू 4v डिवाइडेड बाय 2v प्लस 4v। कितना आया 4v/3। वेरी गुड। तो 16v स्क्वायर अपॉन 6v एंड डेट इज इक्वल्स टू 8/3v, यही आया। यस सर। अब नेट एवरेज क्या आएगी आपकी, अब इन दोनों का 2v इंटू वी डैश डिवाइडेड बाय v प्लस वी डैश। चलो निकालो, अब v डैश की वैल्यू पुट करो इसके अंदर। तो 2v इंटू 8/3v डिवाइडेड बाय v प्लस 8/3v। तो बताया था स्टूडेंट्स कि सीधा एलसीएम को सीधा ऊपर ले जाना, 3 को ऊपर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2v इंटू 8/3v इंटू 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा 3v प्लस 8v। ओके, और ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, 3 से 3 कैंसिल, यस, 8 टू द 16v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलो जल्दी से, 11v। तो क्या आंसर आया 16v/11। सॉरी 16v/11। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपका सैंगेज पब्लिकेशन की जो बुक है जेई एडवांस्ड की, जो सबसे फेमस बुक है बीएम शर्मा, उससे मैंने ये क्वेश्चन कराया है। उसमें भी इस क्वेश्चन को करने का ढंग उन्होंने टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से किया है। तो हम कंसिस्टेंटली जो फॉर्मूलेज हमारे पास हैं, हम अगर उससे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जो ऑथर्स होते हैं खुद नहीं लिखते सारी बुक, अब बहुत सारे टीम होती है, कोई कुछ लिखता चला जाता है, कोई कुछ। तो इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाएं, कोई क्लास स्किप ना करें। और सबसे बड़ी बात यह, कोई चीज आपको देखनी है तो उसका वीडियो अवेलेबल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो डायरेक्ट वहीं पहुंच जाया करोगे, और प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो स्टूडेंट जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे आपने सारे अच्छे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ओके सर। ये क्वेश्चन आप करेंगे इंडिपेंडेंटली। A train moves with the speed of 30 km/h in first 15 minutes.
and next 15 minutes with 40 kilometer per hour, and last 30 minutes with 60 kilometer per hour. Find the average, students. तो कैसे किया? सर AM निकाल के सर पहले 15 मिनट्स को निकाल के 35 आ गया, और बिल्कुल, फिर 35 प्लस 65 डिवाइड बाय 2, उससे वेरी गुड, 47.5। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। कितना आया? 47.5 47.5 47.5 47.5 किलोमीटर पर। 47.5 तो स्टूडेंट्स ये एस एल ओडा का क्वेश्चन था, और आप देखेंगे एस एल ओडा साहब ने इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम लिया। आप देखना क्वेश्चन नंबर 4 अनसॉल्व्ड, आप देखना कितना टाइम लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कितने स्टेप्स लगाए हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि आप कितना क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। तो इन क्लासेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और आगे मैंने आपको बताया था जब जॉब के लिए भी आप जाएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे आपकी जॉब में भी, जॉब के लिए जो एग्जाम देंगे उसमें। तो इसीलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इन नोट्स को फॉलो करो। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से अगर आप रिवाइज करें, हमने जो कहानी अपनी द जर्नी डेट वी स्टार्टेड, फ्रॉम हेयर, तो अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, सपोज टाइम भी डिफरेंट है, डिस्टेंस भी डिफरेंट है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला फिर आप लगा सकते हैं सीधा, बिल्कुल S1 प्लस S2 V1 V2 अपॉन S1 V2 दिस। ओके, और अगर T1 T2 दे रखा है तो S1 प्लस S2 अपॉन T1 T2। तो अगर T और S दे रखा है तो ये, V और S दे रखा है तो ये फार्मूला, और V और T दे रखा है तो ये फार्मूला। तो तीन ही वेरिएबल हैं, तीनों में से एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। VT दे रखा है तो ये, VS दे रखा है तो ये, और सेम डिस्टेंस हो गया तो हमने हार्मोनिक मीन आ गया, और सेम टाइम हो गया तो अर्थमेटिक मीन आ गया। अदरवाइज जर्नल फार्मूला फार्मूला नंबर 1 रहेगा। आई होप कंसेप्ट्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमने इससे रिलेटेड जितने भी SLA क्वेश्चंस थे और जो भी क्वेश्चंस BM शर्मा में थे हमने सारे कर लिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.